start with enthalpy of formation. Enthalpy of formation वाले न्यूमेरिकल सबसे पहले, उसके बाद enthalpy of combustion पे, calorific value पे, and after that enthalpy of neutralization. So first, on the basis of enthalpy of fusion is, based on enthalpy of formation, the important question is the enthalpy change for the reaction and reaction is N2 gas plus thrice H2 gas giving you twice NH3 gas is minus 92.2 kilojoules. Calculate the enthalpy of formation. Calculate the enthalpy of formation of NH3 gas. तो by the definition enthalpy of formation क्या होती है? enthalpy of formation होती है कि जब एक मोल substance बनेगा from its constituent stable elements, that is known as enthalpy of formation. यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए देखिए enthalpy change given है, that is 92.2 minus 92.2 kilojoules. अब यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं NH3 के? 2 मोल्स बन रहे हैं, लेकिन NH3 की enthalpy of formation क्या होगी? अगर आप एक मोल बनाएं, NH3 का एक मोल बनना चाहिए, तो 2 मोल्स बनने के लिए अगर enthalpy change, enthalpy जो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है 2 मोल्स बनते हुए, अगर वो है माइनस 92.2, तो एक मोल के लिए कितना होना चाहिए? एक मोल के लिए इट विल बी minus 92.2 divided by 2, and this will be equal to minus 46.1 kilojoules per mole. So इनमें आपने ये माइंड में रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे न्यूमेरिकल्स में, कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज फॉर 1 मोल. अगर किसी रिएक्शन के लिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ 2 मोल्स बन रहे हैं, आपने 1 मोल के लिए निकाल लेना है कि 1 मोल के लिए कितना एंथैल्पी चेंज होगा. जो 1 मोल के लिए निकलेगा दैट विल बी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3. So this was based on enthalpy of formation. Next question is also based on enthalpy of formation. Before doing that, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेल्टा H नॉट for the reaction, standard enthalpy change for the reaction can be calculated from the standard enthalpy of formations of the reactants and the products. और फॉर्मूला है कि डेल्टा H नॉट reaction is equal to summation of addition of enthalpy of formations standard enthalpies of formations of products minus summation of standard enthalpies of formation of reactants. This formula you should remember कि अगर आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की दी हुई है प्रोडक्ट्स की भी और रिएक्टेंट्स की भी, तो आप उसको डेल्टा H नॉट रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन यू कैन कैलकुलेट. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है AA प्लस BB गिविंग यू CC प्लस DD. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन अगर दी हुई है C एंड D की, मान लीजिए दे आर X Y and this is Z and this is, let it be W.
स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है सारे सब्सटेंसेस की इनकी, तो आपने कैसे निकालना है? डेल्टा एच नॉट फॉर रिएक्शन फॉर दिस हाइपोथेटिकल रिएक्शन विल बी इक्वल टू x तो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन C की, तो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इट विल बी C इंटू एक्स प्लस डी इंटू वाई, ये तो होगी समीशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस summation of standard enthalpies of formations of the reactants A into Z plus B into W. So this is the formula from which you can calculate the standard enthalpy change for a reaction. अब एक convention है इसमें, and that convention is that standard enthalpy of formation for a pure element is taken as 0. जैसे कार्बन की लेनी है, कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है, उसके लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन विल बी 0, O2 के लिए इट विल बी 0, N2 के लिए इट विल बी 0, O3 के लिए इट विल बी 0. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर अ प्योर एलिमेंट और प्योर एलिमेंट्री सब्सटेंस इज टेकन एज 0. दिस इज अ कन्वेंशन, इसको भी आपने माइंड में रखना है. नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस टाइप ऑफ फॉर्मूला. And question based on this is calculate the enthalpy change in the reaction और reaction given है 4NH3 gas plus thrice O2 gas giving you twice N2 gas plus 6 H2O liquid. And this he is asking at 298 Kelvin. Given that enthalpy of formation at 298 Kelvin for NH3 gas, क्या लिख रहा हूं मैं? enthalpies of formation लिख रहा हूं किसके लिए? NH3 gas के लिए. These are the values of enthalpies of formations. NH3 gas के लिए it is minus 46.0 kilojoules per mole, and for H2O liquid it is equal to minus 286.0 kilojoules per mole. तो NH3 और H2O liquid की enthalpies of formation are given, और N2 और O2 की क्या होनी है? N2 and O2 these are the pure elementary substances, elements हैं, तो these will be taken as, इनकी enthalpies of formation क्या लोगे? 0. Therefore इनकी वैल्यूज भी गिवन नहीं है, और जिनकी वैल्यूज गिवन नहीं है तो आपको उसमें माइंड में रखना है कि जरूर वो एलिमेंट्स होंगे तभी उनकी वैल्यूज गिवन नहीं है. तो इसमें अगर निकालना है फॉर्मूला लगा दीजिए वही वाला कि डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स. इसकी तो 0 है. 6 इंटू H2O की वैल्यू दैट इज 6 इंटू माइनस 286 माइनस रिएक्टेंट्स कौन से हैं? O2 की तो 0 है. 4 इंटू NH3 की वैल्यू दैट इज 4 इंटू minus 46, and this will give you standard enthalpy change for this reaction, and if we calculate this should be equal to minus 1532 kilojoules. Minus 1532 kilojoules. So this formula you should remember, delta H naught reaction जो है that is equal to standard enthalpies of formations of the products minus standard enthalpies of formations of the reactants. Next is numerical based on calorific value, that is numerical based on enthalpy of combustion. And the question is the enthalpies of combustion
of CH4 and C2H6 are minus 890.3 and minus 1559.7 kilojoules per mole respectively. These are the enthalpies of combustion of CH4 and C2H6 given है दोनों values, और he is asking that which of them is a better fuel. तो बेटर फ्यूल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? कैलोरीफिक वैल्यू. कैलोरीफिक वैल्यू किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगी? 1 ग्राम के लिए. CH4 का केस लें पहले. CH4 में जब इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन देख रहे हैं CH4 की, तो कितनी हीट इवॉल्व हो रही है इसमें? 1 मोल जब बर्न कर रहे हैं CH4, 1 मोल CH4 का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का? 12 प्लस 4 दैट इज 16 ग्राम्स. तो 1 मोल जब बर्न हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मींस कि 1 मोल जब बर्न हो रहा है CH4 दैट इज 16 ग्राम्स जब ये बर्न हो रहा है, तो कितनी हीट निकल रही है? 890.3. 1 ग्राम बर्न होने पे कितनी निकलेगी? 890.3 डिवाइडेड बाय 16. और इसमें भी सेम केस है. ये जो C2H6 है इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए. 1 मोल मतलब इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दिस विल बी 12 into 2 24 प्लस 6 30 ग्राम्स बर्न जब हो रहा है ये C2H6, तब कितनी हीट निकल रही है? 1559.7 किलो जूल्स. 1 ग्राम जब बर्न होगा तो कितनी निकलेगी? डिवाइडेड बाय 30. तो आपने क्या करना है? कैलोरीफिक वैल्यूज निकाल लेनी है ऐसे क्वेश्चंस में. 1 ग्राम के लिए हीट निकाल लेनी है. दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द यूनिटरी मेथड, और जो ज्यादा वैल्यू निकलेगी दैट इज अ बेटर फ्यूल. तो CH4 का केस देखें. CH4 के केस में 1 ग्राम के लिए निकालना, जब ये आपने किससे डिवाइड करना है इसमें? 890.3 डिवाइडेड बाय 16. कैलोरीफिक वैल्यू निकाल रहा हूं मैं 1 ग्राम के लिए. 890.3 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज इक्वल टू 55.64 kilojoules per gram. Similarly, I'll calculate this value for C2H6 also, and 1559.7 divided by 30, which is equal to, if we calculate this will be 51.99 kilojoules per gram. तो किसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है? देखिए CH4 की. तो कौन सा बेटर फ्यूल है? CH4 is a better fuel amongst these two fuels, CH4 and C2H6. Next question is based upon enthalpy of neutralization, and these are very important questions. enthalpy of neutralization वाले. तो 2 questions हैं, 2 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं इसके बेसिस पे, enthalpy of neutralization पे. और दोनों में we have to calculate the heat evolved for the following experiments. The question is calculate the heat evolved for the following experiments. फर्स्ट केस पहले देखते हैं. फर्स्ट केस है कि जब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर HCl is mixed with, इसको अगर मिक्स कर दें with 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.3 मोलर NaOH. This is the question based upon enthalpy of neutralization. अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आप मोल्स निकालिए कि अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर HCl लिया जाए तो उसमें कितने मोल्स होंगे? किसके? H पॉजिटिव के.
अब पॉइंट टू मोलर क्या होता है? जब हमने बेसिक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट किया है तो आपको याद होगा कि पॉइंट टू मोलर HCl मीन्स कि 1 लीटर में अगर HCl का 1 लीटर लिया जाए दैट विल कंटेन कितने मोल्स होने चाहिए HCl के? 0.2 मोल्स ऑफ HCl। देखिए मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। और कहा जाए कि मोलैरिटी इज 0.2 मोलर, HCl की मोलैरिटी इज 0.2 मोलर। इसका मीनिंग क्या है कि 1 लीटर अगर HCl की सॉल्यूशन है उसमें कितने मोल्स हैं HCl के? 0.2 मोल्स ऑफ HCl। और HCl क्योंकि ऐसे डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयनाइज होता है ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही H पॉजिटिव के होंगे, isn't it? जितने मोल्स HCl के होंगे उतने ही H पॉजिटिव के होंगे। दैट मीन्स आपने क्या करना है? HCl के मोल्स निकाल लेने, जितने मोल्स HCl के आएंगे उतने ही मोल्स H पॉजिटिव के होंगे। 0.2 मोलर मीन्स 1000 मिलीलीटर अगर सॉल्यूशन है उसमें 0.2 मोल्स HCl के हैं या 0.2 मोल्स H पॉजिटिव के हैं। 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर अगर इसकी सॉल्यूशन है तो उसमें कितने मोल्स हैं H पॉजिटिव के? 0.2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। बात कितने की हो रही है? 100 सेंटीमीटर क्यूब की। 100 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 100 मिलीलीटर। तो 100 में कितने होंगे ये कैलकुलेट कीजिए आप। दिस विल बी 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100। अब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली क्या करोगे? 0.2 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू जितना मिलीलीटर दिया हुआ है इंटू 100। तो दिस विल बी 0.02 मोल्स आ रहे हैं किसके? H पॉजिटिव के। दूसरी साइड इन द सेम मैनर आप NaOH के मोल्स निकाल लीजिए। NaOH के जितने मोल्स होंगे उतने ही OH नेगेटिव के होंगे, क्योंकि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अगर 1 मोल इसका डिसोसिएट हो रहा है तो 1 मोल इसका बनेगा, 1 मोल इसका बनेगा। 2 मोल्स इसके डिसोसिएट हो रहे हैं तो इसके भी 2 बनेंगे, इसके भी 2 बनेंगे। अगर 0.3 मोल्स इसके निकल रहे हैं यहां से तो इसके भी 0.3 बनेंगे, इसके भी 0.3 बनेंगे। तो सबसे पहला एम होना चाहिए कि NaOH की मोल्स निकालिए। NaOH के कितने मोल्स होंगे? जितने NaOH के मोल्स होंगे उतने ही OH नेगेटिव के मोल्स होंगे। तो देखिए 0.3 मोलर मीन्स 1000 मिलीलीटर अगर लिया जाए ये NaOH सॉल्यूशन तो उसमें कितने मोल्स होंगे NaOH के या फिर OH नेगेटिव के? 0.3 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। बात कितने की हो रही है? 200 मिलीलीटर की। 200 मिलीलीटर में कितने होंगे? 0.3 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 0.06 मोल्स किसके? OH नेगेटिव के। अब बात यहां पे आ गई कि जब न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, इन जो दिया हुआ था हमने चेंज कर दिया उनको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव में और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH नेगेटिव में। अब क्वेश्चन क्या बना कि अगर न्यूट्रलाइजेशन की जाए 0.02 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव की विद 0.06 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, कितने H पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? 0.02 पूरे के पूरे आयनाइज हो पूरे के पूरे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये तो पूरे न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। ये किस हिसाब से न्यूट्रलाइज होंगे? जितने इसके मोल्स हैं उतने ही इसके न्यूट्रलाइज होंगे। दैट मींस इतने में से 0.06 में से जस्ट 0.02 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव विल गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो क्वेश्चन क्या बन गया? अब क्वेश्चन ये बना कि 0.02 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव दे आर गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड विद 0.02 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। ये जितने मर्जी ले लो आप, चाहे जितने ज्यादा ले लो, न्यूट्रलाइजेशन कितने की होनी है? जो कम वाले मोल्स हैं उसके हिसाब से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाना है आपने। तो क्वेश्चन ये बन गया अब 1 मोल पे आपको पता है कि 57.1 किलो जूल्स हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। 1 मोल पे यू नो दैट कितनी एनर्जी इवॉल्व होती है? 57.1 किलो जूल्स। तो 0.02 मोल्स अगर न्यूट्रलाइज हो तो कितनी एनर्जी इवॉल्व होनी चाहिए? 1 मोल पे 57.1, 0.02 पे into 0.02, 57.1 kilojoules into 0.02 and this will be equal to 1.14 kilojoules. So this was the question based upon enthalpy of neutralization, जिसमें सबसे पहले मैंने ये किया कि जो solutions given है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 मोलर HCl
इसका मैंने कन्वर्ट किया कि कितने मोल्स हैं इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव के या HCl के। HCl के निकल जाएंगे तो उतने ही H पॉजिटिव के होंगे। 1000 मिलीलीटर में 0.2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव, 100 मिलीलीटर में आगे 0.02 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। सिमिलरली उसमें भी कैलकुलेट किया 200 मिलीलीटर ऑफ 0.3 मोलर NaOH में मोल्स आए OH नेगेटिव के 0.06 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। जब न्यूट्रलाइजेशन होनी है तो जो स्मॉलर नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके हिसाब से होनी है। एक मोल पे 57.1 किलो जूल हीट एनर्जी निकलती है, तो 0.02 पे energy evolved will be 1.14 kilojoules. Next question based upon enthalpy of neutralization is, इसमें भी we have to calculate the heat evolved. Same type of question is there based upon enthalpy of neutralization. And the question is 400 centimeter cube of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 600 centimeter cube of 0.1 molar NaOH. अब इस क्वेश्चन में एक चीज माइंड में रखनी है कि H2SO4 की बात हो रही है। H2SO4 इज ऑल्सो ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जितने मोल्स H2SO4 के आएंगे उससे डबल मोल्स H पॉजिटिव के आने हैं, बिकॉज H2SO4 कैसे डिसोसिएट होगा, देखिए H2SO4 will form 2 H positive ions and 1 SO4 2 negative ion सल्फेट आयन। तो आप ये कीजिए कि पहले मोलैरिटी निकाल लीजिए H2SO4 की, या फिर डायरेक्टली H पॉजिटिव की निकाल लीजिए, ये माइंड में रखते हुए कि जितनी मोलैरिटी H पॉजिटिव की, जितने मोल्स H2SO4 के आने हैं उससे डबल मोल्स आने हैं H पॉजिटिव के। H2SO4 के जितने मोल्स होंगे उससे डबल विल बी द मोल्स ऑफ H पॉजिटिव। तो कैसे निकलेगा ये? 1000 मिलीलीटर में कितने मोल्स हैं H पॉजिटिव के? पहली बात 1000 मिलीलीटर में कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 0.2 मोल्स। और H पॉजिटिव के कितने होंगे? 0.2 इंटू 2। बात कितने की हो रही है? 400 मिलीलीटर की। दिस विल गिव यू 2 इंटू 0.2 divided by 1000 into 400, and if we calculate this, these are equal to 0.16 moles आगे H positive के। Second part of the question is, इसमें आपने NaOH के मोल्स निकालने हैं, और NaOH पता है आपको, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि NaOH के जितने मोल्स आएंगे उतने ही OH नेगेटिव के आएंगे। तो NaOH के कितने आएंगे? 0.1 divided by 1000 into 600, and this is equal to 0.06 moles of OH negative। अब जब न्यूट्रलाइजेशन होनी है, देखिए ये है 0.16, ये है 0.06। न्यूट्रलाइजेशन किसके हिसाब से होगी? जो कम है, जिसके मोल्स कम है। कौन सा कम है? OH नेगेटिव यहाँ पे कम है। So that means neutralization will be according to 0.06 moles। और कितनों की न्यूट्रलाइजेशन होगी? 0.06 moles of H positive, they will get neutralized with 0.06 moles of OH negative। एक मोल में हीट इवॉल्व आपको पता है 57.1 किलो जूल्स, तो 0.06 में कितनी हीट इवॉल्व होगी? 57.1 into 0.06, and if we calculate this, this will be equal to 3.43 kilojoules। These were the questions based upon enthalpy of neutralization, and next topic which we will cover is Hess's law of constant heat summation, and this is very important topic।
तो ये जो लॉ है हेसस लॉ, ये कहता है कि जब भी एंथैल्पी चेंज आपने निकालनी है किसी भी प्रोसेस के लिए, दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, चाहे वो प्रोसेस एक स्टेप में हुआ है चाहे वो प्रोसेस मल्टी स्टेप में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रिएक्शन हो रहा है ए टू बी डायरेक्टली, आप लिख रहे हो उसको आप ऐसे, और या फिर वो वाया सी ऐसे करके जा रहा है, ये प्रोसेस जो है यहाँ पे ए टू बी है एंड another path can be A to B via C. So this law says कि enthalpy change for the process A to B will always be constant whether this process takes place in single step or this process takes place in multiple steps. चाहे A to C to B जाए, चाहे जितने मर्जी लंबा पाथ फॉलो कर ले, लेकिन जो enthalpy change है that will depend only on the initial and the final states. Enthalpy change will be constant. अगर A टू B डायरेक्टली जाए, मान लीजिए एंथैल्पी चेंज इज डेल्टा H, A टू C के लिए एंथैल्पी चेंज इज मान लीजिए डेल्टा H1, और C टू B के लिए लेट द एंथैल्पी चेंज बी डेल्टा H2. तो दिस लॉ सेज दैट डेल्टा H शुड बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. तो इसके लिए थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन देखते हैं कि मान लीजिए ए टू बी, जब प्रोसेस यहां से यहां जा रहा है तो हीट इवॉल्व्ड इज इक्वल टू क्यू, और जब वाया सी जा रहा है लेट द हीट इवॉल्व्ड बी क्यू डैश. मैं क्या कह रहा हूं कि ए टू बी मान लीजिए हीट इवॉल्व्ड इज क्यू, और वाया सी जा रहे हैं अगर हम ए टू बी, लेट द हीट इवॉल्व्ड इज क्यू डैश. नाउ सपोज दैट Q dash is greater than Q. तो हम ऐसा साइक्लिक प्रोसेस फॉलो कर रहेंगे कि अगर A टू B जाए वाया C और B टू A आ जाए डायरेक्टली ऐसे को, तो इन दैट साइक्लिक प्रोसेस Q dash माइनस Q अमाउंट ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड. देखिए एक बार फिर से देखिए, मैंने कहा कि A टू B डायरेक्ट प्रोसेस में मान लीजिए Q amount of heat is evolved. A to B via C जाए तो मान लीजिए Q dash amount of heat is evolved. अब एक चीज क्लियर है आपको कि अगर A to B जा रहे हैं तो हीट इवॉल्व हो रही है, तो B से A आए तो Q amount of heat will be absorbed. A to B अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो B to A हीट will be absorbed. मैंने ये माना कि Q dash, let Q dash जो हीट इवॉल्व हो रही है जब आप A to B via C जा रहे हैं, let Q dash is greater than Q. फिर मैं साइक्लिक प्रोसेस ऐसे फॉलो कर रहा हूं कि मैं A to B ऐसे जाऊं, अगर इस प्रोसेस में ऐसे जाएं अगर A to B via C, तो Q dash amount of heat will be evolved, और B to A ऐसे आ जाएं तो Q amount of heat will be absorbed. तो इस प्रोसेस में Q dash minus Q amount of heat has been generated. और ऐसे कई पाथ्स, ऐसे साइक्लिक पाथ्स फॉलो कर लें तो अमाउंट large amount of heat can be produced, or this will be against the energy of conservation of energy. This will be against the law of conservation of energy. Therefore our supposition that Q dash is greater than Q is wrong. Therefore Q dash should be equal to Q. Therefore delta H should be equal to delta H1 plus delta H2. So this is Hess's law of constant heat summation, that the enthalpy change for a process, whether it takes place in single step, चाहे एक स्टेप में जाए चाहे मल्टीपल स्टेप्स में जाए, the enthalpy change will be constant. और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं they are very important कि हम ऐसे रिएक्शंस की एंथैल्पी चेंजेस निकाल सकते हैं जिनको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं किया जा सकता. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह पता होना चाहिए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं. थर्मोकेमिकल इक्वेशंस होती हैं ऐसी इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो नॉर्मल इक्वेशन जैसे केमिकल इक्वेशन होती है, उसके साथ साथ राइट हैंड साइड में कितनी एंथैल्पी चेंज है, कितनी हीट इवॉल्व हुई है या हीट एब्जॉर्ब हुई है, वो भी गिवन हो. दैट इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन. जैसे कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिविंग यू CO2 गैस, दिस इज जस्ट अ केमिकल इक्वेशन. नाउ अगर साथ में इसके ये डेटा भी गिवन हो कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है, कितनी हीट इवॉल्व हुई, जैसे इस केस में 393.5 किलो जूल्स,
दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इवॉल्व्ड। जब 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट को बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो हीट एनर्जी इवॉल्व्ड इज 393.5 किलो जूल्स। दिस इज अ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस। और इसकी जो एप्लीकेशन कर रहे हैं हम हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन की, उसमें यह है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्राइक इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो। मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 2C प्लस ट्वाइस O2 गिविंग यू ट्वाइस CO2। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने डेल्टा H को भी मल्टीप्लाई करना है विद 2। अगर इस इक्वेशन को किसी के साथ एडअप कर रहे हो तो उसका डेल्टा H जो भी होगा और इसका डेल्टा H उनको भी एडअप करना पड़ेगा। अगर आप किसी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इस इक्वेशन को, तो जैसे आप इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वैसे ही आपको डेल्टा H वैल्यू को भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें यूज करके वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्शंस जिनकी वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं की जा सकती बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल इक्वेशंस, बाय यूजिंग सर्टेन थर्मोकेमिकल इक्वेशन जिनकी वैल्यूज हमें एंथैल्पी चेंजेस की पता है। तो इसकी हम एप्लीकेशन करेंगे। वी विल डू न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द हेसेस लॉ, and applications will be more clear from the numericals which we are going to do now. First is calculate the enthalpy of formation calculate the enthalpy of formation of ethane from the following data. Enthalpy of formation निकालनी है इथेन की. We have to write the equation for the enthalpy of formation of ethane also in this case, but the data given is, first equation जो है that is given, C solid plus O2 gas giving you CO2 gas, और इसके लिए delta H naught is given, that is equal to minus 393.5 kilojoules. Second equation which is given is H2 gas plus half O2 gas giving you H2 liquid, and for this delta H naught is given, which is equal to minus 285.8 kilojoules. Third equation which is given is C2H6 liquid plus 7/2 O2 gas giving you twice CO2 gas plus thrice H2O liquid, and delta H for this is also given, which is equal to minus 1560 kilojoules. This is the required data जिसको आपने, this is the given data जिसको आपने use करना है to find the enthalpy of formation of ethane. तो enthalpy of formation of ethane के लिए equation लिखनी पड़ेगी. Required equation क्या है? Required equation is enthalpy of formation of ethane. Ethane का एक molecule बनवाना है आपने. C2H6 gas, ये किससे बनेगा? Twice C solid plus thrice H2 gas. This is the enthalpy of formation of ethane. इसके लिए equation जो है इसमें माइंड में रखना है, जब बैलेंसिंग करनी है तो एक मोल बनवाना है, मल्टीप्लाई वगैरह जो बैलेंसिंग के लिए करना है वो इन रिएक्टेंट्स को कीजिए, जिस मर्जी से आप मल्टीप्लाई कीजिए हिट एंड ट्रायल से,
लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से भी, ये एक मोल ही बनना चाहिए, बिकॉज बाय डेफिनेशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज कि एक मोल जब वो बनता है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, इट हैज टू बी C2H6, 1 C2H6 ओनली, दिस विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम ट्वाइस C सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस। इसके लिए डेल्टा H चाहिए। दैट मीन्स वही क्वेश्चन हो गया कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहां तक आपने पहुंचना है, इनको कुछ भी कीजिए आप, मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड करना है ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रैक्ट कीजिए, लेकिन जब आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है तो साथ में डेल्टा एच वैल्यूज को भी वही करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे करना होता है। आंसर देखिए, आंसर क्या चाहिए आपको, 2 इंटू सी, दैट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। थ्राइस इंटू H2, दैट मीन्स सेकेंड इक्वेशन को आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। C2H6, दैट मीन्स इसको आपने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। आंसर में वी हैव 1 C2H6 और यहां रिक्वायर्ड जो गिवन डाटा है उसमें भी वी हैव 1 C2H6। मल्टीप्लाई नहीं करना किसी से, लेकिन एडअप या सब्ट्रैक्ट इस हिसाब से करना पड़ेगा कि C2H6 आपका राइट हैंड साइड में आ जाए। राइट हैंड साइड में कैसे आ सकता है, आपको क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा इसमें, ऑपरेशन विल बी 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2, बिकॉज H2 के साथ 3 मल्टीप्लाइड है, और C2H6 वाली इक्वेशन को कुछ नहीं करना, लेकिन माइनस करवानी पड़ेगी, ये सब्ट्रैक्ट करवानी पड़ेगी फ्रॉम अबव टू इक्वेशन जिनको आपने एडअप किया, सो दैट C2H6 जो है राइट हैंड साइड में चला जाए। तो क्या किया देखिए, ऑपरेशन विल बी बाय ऑपरेटिंग, रिक्वायर्ड इक्वेशन तक कैसे पहुंचोगे आप, बाय ऑपरेटिंग 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। तो इफ वी चेक दिस कि अगर आप ऐसे ऐसे ऑपरेशन करें तो आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यू कैन चेक दिस, इफ वी डू दीज ऑपरेशंस वी विल गेट दिस इक्वेशन, अदर्स जो अनवांटेड हैं दे विल गेट कैंसल्ड आउट अपने आप। तो जैसा जैसा इक्वेशंस को किया आपको डेल्टा एच निकालना है, आपको इनको भी वैसा ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू दिस, जो डेल्टा एच ये वाला है दैट कैन बी कैलकुलेटेड कैसे, 2 इंटू माइनस 393.5 प्लस किया आपने 3 इंटू दिस माइनस 285.8, इसको क्या करवाया, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाया, तो माइनस ऑफ माइनस 1560 दैट विल बी इक्वल टू प्लस 1560। और ये जो है सारा ऑपरेशन जैसे इक्वेशंस को किया वैसे ही आप डेल्टा एच वैल्यूज को करेंगे। इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू दिस विल कम आउट टू बी माइनस 84.4 किलो जूल्स। तो एक बार फिर से देखिए, ये क्वेश्चन था you have to calculate the enthalpy of formation of ethane from the following data। और डेटा गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई थी C solid plus O2 gas giving you CO2 gas, delta H naught is minus 393.5। सेकेंड इक्वेशन थी H2 gas plus half O2 gas giving you H2 liquid और डेल्टा H उसके लिए गिवन है। थर्ड इक्वेशन was C2H6 liquid plus 7/2 O2 giving you twice CO2 plus thrice H2 liquid, उसके लिए भी डेल्टा H not given है। and he has asked for enthalpy of formation of ethane। इथेन के लिए enthalpy of formation के लिए जो इक्वेशन है that will be C2H6 liquid, C2H6 गैस का एक मोल बनाना है आपने, 1 mole should be formed from its constituent elements। तो ये इक्वेशन आएगी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इसके लिए डेल्टा H नॉट निकालना है। तो इस इक्वेशन तक कैसे पहुंच सकते हो आप, ट्वाइस सी है और ऊपर गिवन डाटा में 1 सी है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन से इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। थ्राइस H2 है, यहां पे कुछ नहीं है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। C2H6 में कुछ नहीं लगा हुआ, 1 है, यहां भी 1 है तो कुछ नहीं करवाना, लेकिन इस इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा सो दैट C2H6 माइनस करने पे राइट हैंड साइड पे चला जाए और हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाए। तो वी डिड द ऑपरेशन 2 इंटू इक्वेशन 1
प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, और जैसा जैसा आपने इक्वेशंस को किया वैसा वैसा डेल्टा एच को भी करेंगे। 2 इंटू माइनस 393.5 प्लस 3 into minus 285.8 minus of minus 1560, that will be plus 1560, and if we calculate this, this will give the enthalpy change for this reaction required equation, and that is equal to minus 84.4 kilojoules. So this was the first question based on Hess's law. Next question which we are going to do is again based on the Hess's law. And the question is, calculate the enthalpy of formation of benzene represented by the following reaction. And the reaction is 6C solid plus thrice H2 gas, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है और इक्वेशन गिवन है बेंजीन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, और कुछ और वैल्यूज गिवन है. ही हैज गिवन द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन standard enthalpy of combustion of benzene is minus 3266 kilojoules, and standard enthalpies of formation of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.1 kilojoule and minus 286 kilojoule. देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए ये वाला, कि इस केस में अब ये प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशंस जो गिवन डाटा है आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी इसमें. यू हैव टू राइट द इक्वेशंस फॉर एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. डेल्टा H वैल्यूज गिवन है लेकिन आपको इक्वेशंस लिखनी पड़ेंगी, और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो चाहिए जहां पे आना है आपने, जिसकी एंथैल्पी चेंज निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसके लिए निकालनी है, वो इसमें गिवन है. तो आपको ये लिखना पड़ेगा सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन क्या होती है. 1 मोल बेंजीन का बनना चाहिए. एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन मींस C6H6 लिक्विड बनना चाहिए. कहां से बनेगा? 6C सॉलिड प्लस थ्राइस H2 गैस. ये जो इक्वेशन है दिस इज फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ combustion of benzene. Sorry, it has to be enthalpy of combustion of benzene. Combustion of benzene will be C6H6 liquid plus O2 gas giving you CO2 gas plus H2O liquid. It has to be H2O liquid. तो बैलेंसिंग करें अगर C6H6 liquid plus O2 gas, this is the equation first of all for enthalpy of combustion of benzene. Enthalpy of combustion होता है 1 मोल जब बर्न हो रहा है वो सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या क्या बनेगा? जब हाइड्रोकार्बन बर्न होता है तो CO2 गैस एंड H2 लिक्विड बनता है. तो इट हैज टू बी 15/2 O2 and 6 CO2
एंड 3H2 लिक्विड, और ये वैल्यू गिवन है आपको डेल्टा H फॉर दिस इज -3266 kilojoules. So this is equation for enthalpy of combustion of benzene. Let it be first equation. Now second equation लिखनी है आपने enthalpy of formation of CO2 के लिए. CO2 कैसे बनेगा? CO2 का 1 मोल बनाना है आपने. enthalpy of formation की जब बात हो रही है, that means CO2 का 1 मोल कहां से बनेगा? C solid plus O2 gas. This is enthalpy of formation of CO2, and this is given that this value is equal to -393.1 kilojoules. Third equation जो आपने लिखनी है, that will be for enthalpy of formation of H2 liquid. तो H2 liquid का 1 मोल बनवाना है. कहां से बनना चाहिए? It will be from H2 gas plus half O2 gas. So these are the three equations which you have to write first of all, और delta H naught for this will be -286 kilojoules. ये लिखनी पड़ेंगी equations. अब वही क्वेश्चन बन गया लास्ट वाला कि ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये गिवन इक्वेशंस हैं. इसमें जो गिवन डाटा था वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इतना है, ये ऐसे करके दिया था. इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिखी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन के लिए. 1 मोल बेंजीन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 H2 बन रहे हैं, बैलेंस किया, डेल्टा H नॉट इज गिवन. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 1 मोल CO2 का कैसे बनता है? C सॉलिड प्लस O2 से, और 1 मोल H2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, 1 मोल H2 का लिक्विड का बनाना है फ्रॉम H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस. नाउ see the required equation, see the answer. क्या है यहाँ पे? 6 into C. That means आपको सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से. आपने स्ट्रेट वे आंसर पे जाना है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, और इन जो डाटा है उस पे जाना है. थ्राइस H2, दैट मींस थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? 3 into थर्ड इक्वेशन. नाउ C6H6 लिक्विड कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में. दैट मींस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करवाना पड़ेगा? माइनस करवाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा. सो ऑपरेशन विल बी, ऑपरेशन क्या करोगे आप इसमें? ऑपरेशन बाय ऑपरेटिंग 6 into equation 2 plus 3 into equation 3 minus equation 1, और अगर आप ऐसा करके देखें that will give this required equation, और जैसा जैसा आपने इक्वेशंस को किया वैसा वैसा आपको डेल्टा H वैल्यूज को भी करना पड़ेगा इस केस में. तो you will do 6 into -393.1 plus 3 into -286 minus of minus, that will become positive 3266, and if we calculate this will be equal to 49.6 kilojoules will be answer. अगर जैसे जैसा किया है देखिए, 6 into this value plus 3 into this value, और इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना ऊपर वाले को, इन दोनों को एड अप करवाना है, इसको सब्ट्रैक्ट करवाना है, and if we do this operation the answer will be equal to delta H naught will be equal to 49.6 kilojoules, and this will be enthalpy change, enthalpy of formation for this reaction जिसके लिए हमने सारा कैलकुलेट किया. So this was Hess's law and numericals based on Hess's law. Next is बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, और बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में व्हाट इज द डिफरेंस? बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक
1 mole bonds of a particular type existing between the gaseous atoms present in the gaseous molecules. तो बॉन्ड एनर्जी है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अगर एक मोल बॉन्ड्स तोड़ने हैं कोई किसके बीच में, गैसियस एटम्स के बीच में. तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जैसे H2 है या फिर O2 है या फिर N2 है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज सेम. लेकिन इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सच एज CH4, इस केस में बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की कैसे निकाली जाएगी? बॉन्ड एनर्जी विल बी, इसको ब्रेक करने के लिए मान लीजिए 1 किलो जूल ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए B, इसको C, इसको D. These are the bond dissociation energies. A is the bond dissociation energy to break this particular bond. B इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए मान लीजिए, C अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको तोड़ने के लिए चाहिए, D अमाउंट इसको तोड़ने के लिए चाहिए. लेकिन जब बॉन्ड एनर्जी लिखी जाएगी CH बॉन्ड की इन CH4, that will be actually the average of all these bond dissociation energies, A plus B plus C plus D divided by 4. So in case of polyatomic molecules, bond dissociation energy और bond energy is different. बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलेगी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में? बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉन्ड्स. नाउ बॉन्ड एनर्जी से भी आप एंथैल्पी चेंज रिएक्शन की निकाल सकते हैं, एंड द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर इज समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. एक यही फॉर्मूला इसमें है जिसमें रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स होगा. तो इसमें प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स मत कीजिएगा कभी भी. जब भी बॉन्ड एनर्जीज के हिसाब से आपने डेल्टा H निकालना है किसी रिएक्शन के लिए, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज फॉर दैट रिएक्शन विल बी इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ द प्रोडक्ट्स. So this will be formula for calculating delta H based upon the bond energies. Next topic which we have to cover is limitations of first law of thermodynamics. और क्या जरूरत पड़ गई कि सेकेंड लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ा? क्या लिमिटेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? दैट वी विल डिस्कस नाउ.